what is a diabetic foot? It's a really serious problem. India is considered to be diabetic capital in the world. दो हैंकी रखिए, एक हैंकी आपके फेस के लिए, दूसरा आपको फूट के लिए. डॉक्टर साहब ये स्टार्ट कैसे होता है, हमें Yes. पता कैसे होता उसमें जॉइंट का आर्किटेक्ट चेंज हो जाता है. है? सिम्टम्स कैसे स्टार्ट होगा कि आई शुड नीड टू गो एंड शो अ डॉक्टर इमीडिएटली? फूट का जो सेंसेशन है ना, वो पता नहीं चलता. They go for pedicure to these different Right. beauty parlors. Right. How hygienic it is for a diabetic patient? They should do pedicure at home as instructed by plastic surgeon. Yeah. ऐसे भी देखा गया है कि वो पेडिक्योर के बाद लोगों का एम्पुटेशन भी हुआ है नॉन डायबिटिक पेशेंट. इतना इन्फेक्शन होता है वहाँ पे. How dangerous is diabetic foot? आज डॉक्टर साहब हमको बताइए कि अगर if we don't take care of our feet, where can it lead? एंटर जॉइंट और फुट इज क्रिपल्ड. सो फुट का पूरा आर्किटेक्ट चेंज हो जाता है और आप जैसे ही चलना शुरू करेंगे ना, फ्रीक्वेंटली देयर विल बी बिकॉज ऑफ द अल्टर्ड प्रेशर पॉइंट्स. Get yourself checked from head to toe, and toe being a very important part of your checkup. Namaskar. Welcome to all of you for Kalinga Med Talk, another episode और एक डिस्कशन. ये डिस्कशन जो आज है, कहते हैं कि डायबिटीज होने से आप अपने चेहरे का उतना ख्याल नहीं रखेंगे जितना आप अपने फुट का रखेंगे, अपने गोड़ों का रखेंगे. Diabetic foot is something which we are going to discuss today, and this diabetic foot discussion is going to be with Dr. who is an eminent plastic surgeon, reconstructive surgeon. He's got a very big name in the state and outside the state, Dr. Jayant Das. So I would request sir to introduce himself to the viewers. Namaste. So I am Professor Dr. Jayant Kumar Das with almost experience of 19 years in plastic surgery, and I cover all the spectrum of plastic surgery, burns, reconstructive surgery and cosmetic surgery. And recently, because of the increasing incidence of diabetic patients, there is increased incidence of diabetic foot problems. So it is a unique challenge for a plastic surgeon to prevent and to reconstruct diabetic foot problems. So today's topic is something which is the need of an hour. You will not understand why, because I myself, who is sitting here with almost 20 years of background in the healthcare, I lost my mother because of diabetic foot. My mother was a prolonged diabetic patient with not a very high blood sugar level, but eventually she went away at the age of 59, and it all started with the diabetic foot. तो diabetic feet क्या है, ये हम लोग पहले समझते हैं. तो सर, व्हाट इज अ डायबिटिक फुट? So diabetic foot, it's a really serious problem. So before going to that, I would like to highlight certain things. There is a statistics in World Health Organization. 1 in every 30 seconds, somebody is losing his or her limb because of the diabetes. मैंने एक जन हर 30 1 in सेकंड 30 में. seconds. So this 30 is the seconds. serious problem in diabetes. And India is considered to be diabetic capital in the world. Yes. Because so many patients are diabetic in India. And there is a statistics, almost all among the all diabetic patients, 15% patient develop diabetic foot. 15%. So that is the very precarious situation in diabetic population, and most of the time they don't know that they are suffering from the problem. Yes. So that is also the problem. So we have a very challenging thing. Being a plastic surgeons, we see more of cosmetic patients, but ऐसे में बोलता हूँ कि आप दो हैंकी रखिए, एक हैंकी आपके फेस के लिए, दूसरा आपको फुट के लिए. So you take care of your face, foot like your face. Absolutely. So that is the thing. और ये बहुत ही प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो we need to educate people to prevent diabetes. तो डॉक्टर साहब, ये स्टार्ट कैसे होता है, हमें Yes. पता कैसे चलता है? सबसे पहले थोड़ा सा मेडिकल में समझाऊंगा. तो जो मेडिसिन में हम लोग का डायबिटीज में क्या होता है, वी नो डायबिटीज कॉजेस एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी. Yes. Oh wow, that's a nice statement. So it can cause everything. Okay, it can cause all the complications. तो उसमें जो फुट रिलेटेड है, हमारा 3 चीज होता है. एक होता है न्यूरोपैथी,
दूसरा होता है वास्कुलोपैथी और तीसरा होता है स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स। तो थोड़ा थोड़ा लेमैन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जो न्यूरोपैथी होता है, हमारा 3 सिस्टम है, एक सेंसरी सिस्टम है, दूसरा मोटर सिस्टम है और तीसरा ऑटोनोमिक। तो सेंसरी क्या करता है, जो फूड का सेंसेशन है वो डिटेक्ट करता है, और मोटर जो है वो फूड का जो मसल को सप्लाई करता है, और तीसरा जो ऑटोनोमिक फूड का जो स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, इसको अफेक्ट करता है। और जो वास्कुलोपैथी हो उसका जो ब्लड सप्लाई है, और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट जो एंटायर जो जॉइंट आर्किटेक्चर। तो ये तीनों सिस्टम डायबिटीज में अफेक्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि अब कहाँ पे गर्म पानी गिर गया, कांटे लग गया, चुभ गया, आपको पता नहीं चलता है कि वो हो गया। सेंसेशन है, तो लोगों का घाव हो गया, बट दे आर नॉट एबल टू नो कि उनका घाव हो गया। दूसरा चीज क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द मसल, जो मोटर सिस्टम मसल का अफेक्ट होता है, उसमें जॉइंट का आर्किटेक्ट चेंज हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटिक पेशेंट का जो ना फ्लैट फुट हो जाता है। तो हमारा फुट का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ वेट बेयरिंग एरिया है, दूसरा कुछ नॉन वेट बेयरिंग है, बट डायबिटिक फुट में सारा वेट बेयरिंग एरिया हो जाता है। तो फुट इज नॉट अकस्टम्ड दैट एरिया व्हिच हैज बिकम वेट बेयरिंग। तो उसमें प्रेशर, कंटिन्यूअसली प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, उसमें क्या होता है ना, स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन और सेबेसियस जो ऑयल ग्लैंड और जो स्वेट ग्लैंड का, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है और स्किन बिकम्स ड्राई, और ड्राई होने से क्रैक होता है, क्रैक से इन्फेक्शन होता है। और ये जो न्यूरोपैथी के साथ साथ क्या हो जाता है, आपका जो टिश्यू का ब्लड सप्लाई भी कम है आपका, जो आर्टेरियोपैथी होता है उसमें। जो थर्ड है, ग्लूकोज डिपॉजिट होने से जॉइंट पूरा स्टिफ हो जाता है। नॉर्मली हम जब चलते हैं ना, हमारा अच्छा सा मूवमेंट होता है, बट उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, आपका फुट का आर्किटेक्ट चेंज हो गया, जॉइंट स्टिफनेस हो गया। तब आप जब चल रहे हैं, हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी शू मिल रहा है बाजार में वही पहनते हैं, वी डोंट वेयर कस्टमाइज्ड शू। तो आपका जो चलने के टाइम ना, जो बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं, न्यू प्रेशर पॉइंट्स ऑन द फुट, उसमें कैलोसिटी होता है, आपको पता होगा, जो कॉन कैलोसिटी वो होता है, उसके नीचे अल्सर डेवलप होता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन ए न्यू एरिया व्हिच लीड्स टू डायबिटिक फुट। वहीं से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। So what you're trying to say, doctor, is all the 3 areas are clogged, like your sweat is gone, your muscles are gone, your blood circulations are gone. So that is how it starts happening. That is how it starts. तो एज ए ले पर्सन, जो मैं डायबिटिक हूँ, बहुत दिन से डायबिटिक हूँ या हाईली डायबिटिक हूँ, मेरा सिम्टम्स कैसे स्टार्ट होगा कि आई शुड नीड टू गो एंड शो अ डॉक्टर इमीडिएटली? हाँ, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है, आपको जो फूड का जो सेंसेशन है ना, वो पता नहीं चलता है बहुत टाइम में। वो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि हाँ, मैंने कहीं पे मेरा चोट आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा चीज है, आपका स्किन विल बी वेरी ड्राई। आपको देखना कि पूरा बहुत ही ड्राई स्किन होगा। इवन इन समर, लोगों का यूजुअली विंटर में होता है, बट समर में भी पूरा ड्राई होगा, उसमें क्रैक होता है फुट में, और बहुत सारे कैलोसिटी सब डेवलप करेंगे। आपका बहुत सारे जो पॉइंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स है, वहीं पे थोड़ा सा कैलोसिटी जो डेवलप होंगे, आपको पता चल गया यू आर एट रिस्क। कैलोसिटी एज इन पैचेस? पैचेस, तो यू आर एट रिस्क। तो आप उस समय आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपका इमीडिएटली गो टू ए प्लास्टिक सर्जन, आपका अच्छा सा एग्जामिनेशन करो। देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट। हम उसमें क्या कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका प्रेशर पॉइंट्स है, कहाँ पे सेंसेशन नहीं है, और कहाँ पे द एरिया इज वेरी ड्राई, वो सब पूरा फूड का एक एनालिसिस हो जाता है। ठीक है। अब एनालिसिस के बाद आपको क्या करना है, वी गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस कि रोज आपको फूड हाइजीन मेंटेन करना है। नहाने के टाइम तो आप जरूर लगाते हैं सोप, बट रात को सोते टाइम जरूर फिर से सोप लगाइए, क्योंकि आप दिन भर घूमते रहते हैं, और सॉक्स को भी एवरीडे चेंज करना है। फूड हाइजीन मेंटेन करना है। ठीक है। सेकेंड चीज है मॉइस्चराइज, क्योंकि स्किन इतना ड्राई है, हम क्या होता है विंटर में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो भी लोग, यू हैव टू डू राउंड द ईयर, क्योंकि ना अगर मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, क्रैक बनेगा, क्रैक से आपका ही होगा। और बहुत लोग का हैबिट है, जो कॉर्न कैलोसिटी खुद कॉर्न पैच लगा देते हैं, और उसको ब्लेड में दे आर कटिंग,
उसमें क्या होता है इमीडिएटली इन्फेक्शन इन्फेक्शन, उनको पता नहीं होता है कि किस लेवल में काटना है। और कॉर्न इज लाइक ए कोनिकल थिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं ऊपर पैच लगा दिया तो सुपरफिशियल लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सो ये डीप लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, पूरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन चला जाता है। और फूड इतना जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना, हर एक जो कैविटीज इंट्रिकेसीज तो वहीं पे सारा चला जाता है उनके। और इन्फेक्शन धीरे धीरे सेलुलाइटिस, धीरे धीरे उनका कभी कभी रेडनेस ऑफ द फूट होता है, कभी कभी बहुत सारे स्वेलिंग हो जाते हैं, कभी कभी ब्लिस्टर बनता है। तो ये नॉर्मली पीपल नेग्लेक्ट, हाँ हुआ है कुछ ड्रेसिंग कर देंगे, उसको खुला रख देंगे, तो उस टाइप का जो रहता है तो उनका इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट ए प्लास्टिक सर्जन, ताकि दे विल गिव ऑल द थिंग्स सो दैट इट विल प्रिवेंट अल्सर। आज डॉक्टर साहब है हमारे साथ, ही इज टॉकिंग अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट। वन थिंग आई वुड लाइक टू स्टेट हियर इज दैट इन आवर कल्चर हम लोग बेयर फीट घर में घूमते हैं। हम सोचते हैं कि चप्पल पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, पर एज अ डायबिटिक पेशेंट यू शुड नॉट डू दैट। यू वेयर अ सॉक्स बट डोंट मूव आउट इन अ बेयर फीट। ये जो कल्चर है ना घर में कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, खाली पैर में घूमेंगे, ये कल्चर को एक डायबिटिक पेशेंट को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज बाय द टाइम यू कम टू अ प्लास्टिक सर्जन यू कुड हैव अवॉइडेड इट। डॉक्टर साहब बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो दे हैव दीज ब्लिस्टर्स बिटवीन द फिंगर्स एंड दे आर constantly working in water, right, especially our housewives, right, who are constantly working in water, right, they're constantly washing their feet. Now how dangerous it is for the diabetic patient? It is very dangerous because a small ulceration, small wound in the foot can lead to a very serious problem. Yes. वहीं से ही बैक्टीरिया एंट्री होता है। और आपने बहुत ही बढ़िया रेलिवेंट चीजें बताया कि दे शुड वेयर फुटवेयर इन द एट होम, बिकॉज क्योंकि ना देखो अगर जो ट्रेडिशन है अलग बात है, बट यू आर एट रिस्क, यू हैव टू प्रिवेंट दैट थिंग। और आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गया घर में पहनने के लिए, यू हैव डायबिटिक सॉक्स व्हिच विल टेक केयर ऑफ योर प्रेशर पॉइंट्स। तो सॉक्स भी आ गया, जो सैंडल भी आ गया, यू कैन वेयर। तो इसी वजह से आपका 2 या 3 फुटवेयर रखिए, एक घर के लिए और बाहर के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और जो आपने बताया जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर वॉश करना है, बहुत लोग का हैबिट है बार बार जो फूड को वॉश करते हैं, आपको कीप इट ड्राई, डोंट कीप इट मॉइस्ट। मॉइस्ट रहने से क्या होता है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है, वहीं से ही शुरू हो जाता है। दैट इज डॉक्टर साहब देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज वेरी प्रेवलेंट, बहुत कॉमन दिखता है, एंड आई हैव बीन टेलिंग माय फ्रेंड्स आल्सो, दे गो फॉर पेडिक्योर टू दीस डिफरेंट ब्यूटी पार्लर्स। How hygienic it is for a diabetic patient, whether a diabetic patient should go for pedicure and nail cutting and skin cutting because they also take out your dead skins. How safe it is as a doctor? I think they should do pedicure at home as instructed by plastic surgeon. Yes. Because what I will tell you, बहुत लोग जैसे थाईलैंड बैंकॉक जाते हैं ना, जैसे फिश का एक पेडिक्योर होता है। आप देखो, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फिश इज, अब उसमें क्या इन्फेक्शन है। जो फिश का छोटे छोटे जो घाव करता है उसमें बहुत इन्फेक्शन स्प्रेड है। ऐसे भी देखा गया है कि वो पेडिक्योर के बाद लोगों का एम्पुटेशन भी हुआ है, नॉन डायबिटिक पेशेंट, इतना इन्फेक्शन होता है वहाँ पे। और डायबिटिक तो ऐसे ही हाई रिस्क। और जो छोटे छोटे पार्लर में जो भी पार्लर में करते हैं, दे डोंट हैव एनी मेडिकल नॉलेज। वो कहते हैं कि हाँ ये कौन है तो हम उसको ना सेविंग करवा देते हैं, ठीक है, एंड इट विल बी ऑल राइट। और ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। दे शुड टेक प्रॉपर, जैसे बहुत सिंपल है आजकल मॉइस्चराइजिंग सोप आ रहे हैं, तो एवरीडे ट्वाइस डेली आप अच्छा सा उसको मॉइस्चराइजिंग सोप में साफ कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आफ्टर वॉशिंग योर फीट अच्छा सा ना जो सॉफ्ट टॉवल है उसमें अच्छा सा उसको कर दीजिए ताकि इट विल बी ड्राई। आफ्टर दैट यू अप्लाई बॉडी मॉइस्चराइजर, बहुत सारे मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर आते हैं, तो सो दैट इट विल लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अप टू 24 आवर्स it will keep on moisturizing the skin. So बहुत ही बढ़िया मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर आ रहे हैं, तो इतना बहुत है। अगर कुछ कॉर्न कैलोसिटी है, यू कंसल्ट द प्लास्टिक सर्जन, ताकि either he will remove that corn or callosity with surgery or some medications, whatever the things they will advise. So don't go to any parlor for pedicure. So the biggest learning experience today is कि आपके पास कौन है, आप पार्लर मत जाइए। If you are a diabetic patient, please come to the doctor, first consult.
इफ योर सेंसेशन इज गोइंग अवे, आपका अगर सेंसेशन नहीं है घोड़ों पे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट इतना लाइटली मत लीजिए उसको। और डायबिटिक फुटवेयर आजकल बहुत मिलते हैं, आप उसको प्रिकॉशन, आप उसको बचा सकते हो, आपके लिम्स को आप बचा सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ डेंजरस इज डायबिटिक फुट? आज डॉक्टर साहब हमको बताइए कि अगर इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ आवर फीट, वेयर कैन इट लीड? देयर आर एक स्टडी हुआ है, उसमें ने क्लासिफिकेशन हुआ है 4 क्लासेस। एक तो फुट एट रिस्क, सेकंड इज फुट विथ इन्फेक्शन, जो थर्ड है फुट विथ वुंड व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल, एंड फोर्थ वन इज अ क्रिपल्ड फुट, मतलब इट इज लाइक देयर इज अ चारकोट आर्थ्रोपैथी, सो एंटायर जॉइंट और फुट इज क्रिपल्ड, सो फुट का पूरा आर्किटेक्ट चेंज हो जाता है, और आप जैसे ही चलना शुरू करेंगे ना, फ्रीक्वेंटली देयर विल बी वुंड बिकॉज ऑफ द अल्टर्ड प्रेशर पॉइंट्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होता है वहां से ना, इट बिकम सिस्टमिक, वहीं से सेप्टिसेमिया हो जाते हैं, कभी कभी इन्फेक्शन हुआ, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी, एंड सिंस ऑल अदर ऑर्गन्स आर एट ऑल्सो रिस्क, तो जो चांसेस ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड ब्लड इन्फेक्शन सारा हो जाता है पूरा। उसके साथ उनका जो आई प्रॉब्लम्स होता है, रेटिनोपैथी, ये सब, तो पूरा इट बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। तो आप एक चीज बताइए सर, इसको कंट्रोल करते हुए तो आपको मेडिकेशन, एंटीबायोटिक, वो किडनी पे प्रेशर पड़ता है। एग्जैक्टली, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। सपोज वी आर ट्रीटिंग ए डायबिटिक फुट, तो वहाँ पे घाव है, तो वी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, बट ड्यूरिंग आवर प्रिस्क्रिप्शन वी शुड कीप इन माइंड दैट द पेशेंट इज डायबिटिक, he or she must have certain kidney disease, so we have to reduce the doses, we have to give certain antibiotics, there are certain contraindication for antibiotics also, and the focus is more on antiseptic dressing than rather than antibiotic. So we give antibiotic, but we focus on the antiseptic dressing, because with good dressing, and nowadays there are so many newer technology dressing materials, and it is very helpful for healing of the wound. So उसमें बहुत बढ़िया होता है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक कोलाजन है, तो कोलाजन कॉस्मेटिक में भी यूज होता है फॉर ग्लोइंग स्किन, और कोलाजन जो पार्टिकल्स होता है ना, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर वुंड हीलिंग। तो डायबिटिक फुट में जब घाव होता है, वी यूजुअली प्रिस्क्राइब सर्टेन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट कंटेनिंग कोलाजन एंड अदर एंटीसेप्टिक, तो उसमें इन्फेक्शन भी कम रहता है, और जो कोलाजन वुंड हीलिंग का एक मेजर रोल है, तो इट हील्स ऑफ द वुंड, तो बहुत जल्दी वुंड हील हो जाता है इसमें। तो ये बहुत टेक्नोलॉजी आ गया। और जैसे कोई कैविटी वुंड है, बहुत ही गड्ढा वुंड है, तो उसमें भी कोलाजन स्पॉन्ज आ गया, यू कैन इंसर्ट ए कोलाजन स्पॉन्ज सो दैट इट विल हेल्प ग्रोइंग द। तो ये बहुत सारे ड्रेसिंग मटेरियल्स आ गए, ताकि हमारा जो डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक कम देना पड़ेगा, एंड लोकली, जब तक हम लोकली जितना उसको एड्रेस कर लेंगे ना, इट विल नॉट स्प्रेड टू द बॉडी। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम सबको यही कहते हैं कि यू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। और आपने जैसे कहा ना कि पेडिक्योर, बहुत टाइम में घर में डायबिटिक कोई भी पेशेंट है, जब नहाने जाते हैं ना, हम लोग का आदत है जो टैप खोल देते हैं, एक गर्म पानी आता है, ठंडा पानी मिक्स करके आता है। बहुत टाइम इफ यू आर एब्सेंट माइंडेड, आपने गर्म पानी खोल दिया, आपको तो पता नहीं चलेगा कितना गर्म है, बट आपका तो घाव हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना है, जो घर में डायबिटिक पेशेंट है ना, आप उनके लिए टेस्ट कीजिए कि हाउ हॉट इट इज, और whether तो उसमें नहा लेंगे, and whether the person is being able to get the sensation. Exactly. अगर गर्म पानी है, उनको पता नहीं है, उनने तो टैप खोल दिया, टैप खोल के पूरा गर्म पानी आ रहे हैं, उनने वहीं पे नहा लिया, तो घाव हो गया, और घाव हो गया, उनको पता भी नहीं चला कि घाव। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको प्रिवेंट करें। और जैसे मैंने कहा कि यू कम एज अर्ली एज पॉसिबल, के आपका कोई भी छोटा सा घाव हो रहा है, या छोटा सा ब्लिस्टर बन गया, या रेड हो गया, सूजन आ गया, तो इमीडिएटली आप आ जाओ, आके तुरंत उसी समय ही वी कैन स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। अगर लेट हो जाते हैं, फिर उसमें जैसे घाव धीरे धीरे होकर ना गैंग्रीन हो जाता है, गैंग्रीन होता है। तो एक बार गैंग्रीन, और सबसे और एक बताओ, डायबिटिक फुट में क्या होता है ना, छोटा सा अल्सर होता है, अंदर अंदर वो बोन को स्प्रेड हो जाता है, और बोन का आपने नाम एक सुना होगा, ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन का इन्फेक्शन।
एक बार वो हो गया ना, वो Then- फिर वो हील नहीं होता है. We have to remove that bone. So till you basically हाँ, तो amputate रिमूव बोन मतलब क्या हुआ आपका, वो जो area टो को- है वो टो को एम्पुटेट कर रहे हो आप. ऊपर का स्किन ठीक है बट दैट बोन इज डिस्ट्रॉयड. so it leads to amputation. हाँ, तो जैसे amputation मैंने काट देता हाँ, जैसे फिल्मों में क्या है ना, अंदर से मार देता है, वही डायबिटीज इज सच ए सीरियस थ्रेट. तो आपका ऊपर का स्किन ठीक है बट धीरे धीरे कैलोसिटी से बोन इन्फेक्टेड हो गया, और बोन ये स्टेज भी हो गया. वो ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है ना, बोन लिक्विफाई हो जाता है, धीरे धीरे वो बोन का स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो लिक्विफाई हो जाता है. तो देखें आप, बोन इज एब्सेंट देयर, या बोन इज हाईली पोरस और लिक्विफाइड, धीरे धीरे बोन का जो हार्ड स्ट्रक्चर वो खत्म हो गया. so you have chances of fracture also. फ्रैक्चर ऑल्सो, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. and then putting implants and all becomes a problem for you. बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि इम्प्लांट क्या होता है ना, इम्प्लांट नीड्स असेप्टिक एनवायरनमेंट, वो नहीं होता वो नहीं होता है. इम्प्लांट आप जहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. तो एक चीज बताइए, मेरी मदर का जैसे फ्रैक्चर हुआ, इम्प्लांट रिएक्टेड टू द बॉडी बिकॉज शी हाँ. वाज डायबिटिक, डायबिटिक ऐसे भी होता है. बहुत होता है. इम्प्लांट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या ना, जैसे हम लोग कभी भी ओटी में कोई भी इम्प्लांट डालते हैं, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, कॉस्मेटिक रिलेटेड है या जो भी है, तो उसमें एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी चाहिए, क्योंकि छोटा सा इन्फेक्शन इम्प्लांट में अगर आ गया ना, Gone. एंड इट स्टेज ऑन द इम्प्लांट. Then आप it's- कुछ भी एंटीबायोटिक दो, वो इम्प्लांट That's तक वो पहुंचता नहीं. वी हैव टू रिमूव दैट इम्प्लांट. Hmm. अनलेस अनटिल यू रिमूव दैट इम्प्लांट इट विल नॉट हील. तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इसमें, और ये डायबिटिक में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. So, Dr. Saab, what is your suggestion to the people who are handling diabetic patients or who are diabetic? ये क्या highly diabetic patients का होता है या prolonged diabetes से होता है? ये प्रोलॉन्ग होता है? डायबिटीज, जैसे मैंने बताया, अगर लाइफ में जितने जो 10 इयर्स के बाद इट इंक्रीजेस रिस्क, और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में और ज्यादा रिस्क होता है, और 15% इन डायबिटिक पॉपुलेशन हमें देखा गया है कि वहाँ पे फूड प्रॉब्लम्स होता है. तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आप जो बोल रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड फुटवेयर है, व्हाट आर द फुटवेयर्स यू वुड सजेस्ट? ये मैडम बहुत बढ़िया है. तो पहले क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली बाटा या जो भी कंपनी का शूज पहनते हैं, तो इट इज फॉर जनरल पॉपुलेशन, राइट. सो इट्स नॉट फॉर डायबिटिक. तो आजकल ये हो गया कि वी कैन मेक कस्टमाइज्ड सैंडल एंड इंसोल. तो ये कस्टमाइज कैसे होता है, देयर इज ए पोडिया स्कैन मशीन, आप वहीं पे खड़ा हो जाइए, हाँ. तो आपका फुट का ना एंटायर मेजरमेंट आ जाएगा, प्रेशर पॉइंट्स आ जाएगा, आप उस हिसाब से एक इंसोल बना सकते हैं. तो उसी को क्या करते हैं, बाकी जैसे अच्छे कंपनी का स्केचर वगैरह वो तो बनाते हैं, आर्च फिट, ये फिट, वो फिट बोलते हैं, जैसे डॉक्टर स्कॉल, ये सब बहुत सारे कंपनी, बट दैट इज फॉर जनरल पॉपुलेशन. इसमें वी कैन मेक इट कस्टमाइज्ड. तो हर जो भी डायबिटिक है उनका एक हैरिस मैट होता है, एक फुट स्कैन होता है, और उनका जो वैस्कुलोपैथी का भी एक मेजरमेंट होता है, तो अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर टाइप का. तो उसमें ना एक फुट एनालिसिस होता है. सो देयर आर नाउ इन साउथ इंडिया देयर आर सो मेनी फुट क्लिनिक्स only. Foot clinics only. Foot clinics, and It's it called is very podiatric- active in podiatric. south. And they are specialized people. They are very podiatricians. specialized. Yeah. And any diabetic patient will come, they will analyze the entire कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ऐसे है, आपका फुट आर्किटेक्ट ऐसे चेंज हो गया, you need a such type of insole. Insole. और वो कंपनी को भेज देते हैं. देयर आर सर्टेन कंपनीज, जैसे एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, क्यूरा फुट है, तो उनको भेजने से क्या होता है ना, तो वो पूरा आपका एक इंसोल दैट इज इन कलकत्ता, दैट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कलकत्ता में एक क्यूरा फुट का एक है, तो उनको भेजने से वो आपको एक इंसोल दे देते हैं, एंड यू कैन वेयर इन एनी ऑफ योर शू. अब जो भी शू पहनते अच्छा, हैं, वो इंसोल हाँ, आपका लिए शू के उसको अंदर. इंसोल हाँ. निकाल दीजिए, ये आपका कस्टमाइज्ड Oh, इंसोल रख perfect, लीजिए. perfect. वो इट इज वेरी पेशेंट स्पेसिफिक, इट इज वेरी मच कस्टमाइज्ड, एंड इट विल प्रिवेंट फ्यूचर अल्सरेशन. आपका जो भी अभी कैलोसिटिक जो भी बन गया, इवन अगर नहीं बना है, इफ यू आर डायबिटिक, start should wearing say. that insole. Okay, that's exactly what I wanted to हाँ, ask. So start when to wearing. start So there that? will be no tell. So once you are detected diabetic, better to wear customized Mhm. sandal or insole shoes. So what you're saying, Dr. Saab, is if I'm detected diabetic, I should also take care of my foot scans. Exactly. I should also get my Doppler's test. Exactly. ईयरली एक बार आप डॉपलर कीजिए वैस्कुलोपैथी का, और एक बार आपका फुट स्कैन कीजिए, एटलीस्ट वंस ए ईयर, और उस हिसाब से यू वेयर योर फुटवेयर. डोंट वेयर एनी नॉर्मल शू. और बहुत टाइम हम लोग का क्या आदत है, जैसे फॉर लेडीज दे विल हाई हील, हाँ.
तो उसमें तो उनको पता नहीं चल रहा है कि उनका वहाँ पे कैलोसिड बन रहा है, बिकॉज द फूड देयर इज नो सेंसेशन, और उसमें ज्यादा रिस्क रहता है। बहुत टाइम हम लोग बहुत ही फ्लैट पहन के, बहुत अगर इफ यू आर ए डॉक्टर और बहुत वार्ड राउंड वगैरह बहुत Yes. होते, तो नॉर्मल दे डोंट वेयर शूज, स्पोर्ट्स शूज पहनना चाहिए या कस्टमाइज्ड इंसोल, ताकि देयर विल बी लेस कैलोसिटी और लेस अल्सरेशन। सो ये बहुत जरूरी है फूड का। So as a doctor who would prevent the patients to get into amputation of food, to end the show, what would be your message to the viewers? हाँ, मैसेज सिंपल है, इट्स ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सबसे पहले जैसे फूड हाइजीन मेंटेन कीजिए, मॉइस्चराइज योर फीट, वेयर कस्टमाइज्ड इंसोल और कस्टमाइज्ड सैंडल, और डू एक्सरसाइज ऑल्सो। जो वॉकिंग एक्सरसाइज इज हाईली प्रिस्क्राइब्ड इन डायबिटिक पेशेंट। उसमें क्या होता है ना, जो जॉइंट का स्टिफनेस कम हो जाता है। आपका अगर फुट का मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं तो आपका जो स्टिफनेस कम हो जाता है, और स्टिफनेस कम होने से क्या होता है ना, जब आप चलते हैं ना, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि आपका एक बार एक जगह में बहुत प्रेशर हो रहा है, तो प्रेशर पॉइंट्स को ये हो जाते हैं, और वी कॉल इट मेडिकली प्रेशर ऑफलोडिंग। आप जहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है उसका आप ऑफलोड कर रहे हो। और बीइंग ए प्लास्टिक सर्जन वी हैव सर्टेन सर्जरीज व्हिच विल प्रिवेंट डायबिटिक फूड। मान लीजिए किसी का अगर जॉइंट प्रॉब्लम है और उसका टोज ऐसे है, तो जॉइंट स्टिफ हो गया, टोज ऐसे हो गया, तो यहाँ पे तो वुंड होगा, तो हम उसको सर्जरी करके अगर सीधा कर देते हैं तो अल्सर कम होगा। सो दैट इज नोन एज सर्जिकल ऑफलोडिंग। एक मैंने बताया जो नॉन सर्जिकल ऑफलोडिंग, आपने इंसोल पहना, सैंडल पहना, दूसरा जो है सर्जिकल ऑफलोडिंग। तो ये करने के बाद अगर है तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस लाइक स्किन ग्राफ्टिंग, क्लाफ्ट, वो सब दैट इज इट, बट वी पर्सनली वी डोंट लाइक टू एम्पुटेट इन डायबिटिक फूड्स। सो बहुत ही खराब लगता है कोई भी पेशेंट का टो फूट एम्पुटेट करने से। सो ऑलवेज वी एनकरेज पीपल यू फॉलो सर्टेन थिंग्स एंड प्रिवेंट देम। So Dr. साहब has said a very pertinent point, आपको बहुत pertinent point। हम लोग बहुत देखते हैं घर में cracked heels, बहुत ज़्यादा औरतों पे ज़्यादा होता है, और हम बढ़िया साड़ी पहनते हैं, बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, पर हमारे गोड़ फटे हुए रहते हैं। उसके ऊपर हम आलता भी लगा लेते हैं क्योंकि हमको हमारे फेस्टिवल्स के लिए रिक्वायर्ड है। बट आप एक डायबिटिक पेशेंट है, ये कितना आपके लिए खराब है, हाउ डेंजरस इट कैन बी, इज समथिंग विच यू रियली नीड टू नो अबाउट। So to today's ending of the show, my message with Dr. Saab, what he says is, you are a diabetic, get yourself checked from head to toe, and toe being a very important part of your checkup. We will come for yet another episode of Kalinga Med Talk. Thank you very much. Namaskar.